شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گورنر سندھ عمران اسماعیل بھائی کے ساتھ یہاں آیا ہے اور آتا رہا ہے اور آتا رہے گا. اور آج صرف موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے مشترکہ کے مستقبل پہ بھی بات ہوئی ہے. اور میں ان کے آنے کا اور ان کے وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور یہ کس لیے آئے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد عمران بھائی آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج MQM کے مرکزی دفتر پہ آنے کا مقصد ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس میں MQM سے باضابطہ طور پہ آج درخواست کی ہے کہ جس طرح سے پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں مضبوطی کے ساتھ MQM وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے، دامے درمے سخنے مشکلات اور مشکل حالات کے باوجود ہمیں اپنے الائز کے اوپر بھروسہ رہا، اور الحمدللہ کسی ایک موقع پہ، چاہے وہ منی بل ہو، وہ نو کانفیڈنس ہو، وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس ہو، وہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا دوسرے مراحل، اس میں ہمیں رتی بھر بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ ایسا محسوس رہا ہے کہ ہم ایک مضبوط ٹیم ورک کے طور سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میری آج یہی درخواست تھی. میں وزیر اعظم عمران خان کا پیغام لے کر MQM کے دفتر میں آیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات اور قربتیں جیسے ہماری پچھلے پونے 4 سال میں بڑھی ہیں، رہی ہیں، ان کو مزید مضبوط بنایا جائے. اور MQM وزیر اعظم کے اس وقت میں جو اس وقت تمام اپوزیشن اکٹھا ہو کے وزیر اعظم کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروگرام سبوتاژ ہو جائے، انہیں آفس سے باہر کیا جائے اور خود جا کر آفس میں بیٹھ جائیں کسی صورت. جو بھی ان کے مقاصد ہیں باہر کیف وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے آج MQM کو بھی یہ بات کنوے کی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اپنے نمبرز پورے ہیں، ہمیں کوئی مانگے تانگے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے الائز ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ بری طرح سے شکست فاش ہوگی اس کو، اور جو لوگ اس کے تانے بانے بن رہے ہیں وہ پھر اس کو بھگتیں گے. نہ کہ عمران خان صاحب جو سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، جو وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، جو وہ دنیا میں اس وقت ایک ریولوشنری لیڈر کے طور سے ابھر رہے ہیں، انہیں کمزور کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت موو ہو رہی ہیں، اور یہ اندرون ملک اور بیرون ملک ہر جگہ سے اس طرح کی چیزیں ہر دور میں ہوئی ہیں. جب بھی کسی لیڈر نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے بات کی ہے، مشکلات آئی ہیں، اور انہی مشکلات کو انشاءاللہ سامنا کرتے ہوئے ہم اس دریا سے بھی پار اتریں گے. میری آج درخواست یہی تھی MQM کے دوستوں سے. خالد بھائی سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ اس موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں، اور جیسے ہم پچھلے 3-4 سالوں سے ہم ساتھ چل رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ تعلقات آگے 8-10 سال بلکہ زیادہ قائم رہیں. گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ خالد صدیقی صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا، یقین دہانی کرائیں گی وہ آپ کے ساتھ رہیں گی؟ خالد بھائی آپ اپنا جواب جی میں جواب دے دوں گا. اور سوال آپ بتا دیں. نہیں، آپ اپنا جواب خود دے دیں اچھا، تو بہتر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں، اس لیے حکومت آج بھی ہے. اور ہاں، ہم حکومت کا جتنا بڑا حصہ تھے اتنا ہی ہم اس پہ اپنا حق بھی جتاتے رہے ہیں.
ज़्यादा या कम क्या मिला है। बहरहाल नई सूरत हाल पैदा हुई है, तो उस पर हमें अपोजिशन ने भी इंगेज किया था, और ये खैर जमहूरी रिवायत के मुताबिक ये हम पे भी ज़िम्मेदारी थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता भी है, और आज बाकायदा भी एक वफ़द आया, उस दिन वज़ीर आज़म साहब भी आए थे, तो उनका इत्मीनान झलक रहा था, तो हमें अंदाज़ा नहीं था, और उस दिन ना कोई इस हवाले से बात हुई है। तो हमने इस हवाले से यही कहा है कि जो भी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, हमें गेज करना है कि इस हवाले से नंबर्स की बात नहीं है, किसका मुकदमा स्ट्रॉन्ग है, किसने अपना इस हवाले से जो भी स्टैंड ले रहा है उस पर वो कह क्या रहा है। हमने उनको सुना है, हमने उनको भी जवाब नहीं दिया है, उनसे ही कहा है कि हम एक बैठ कर पार्टी के अपने जो पूरे तरीक़े हैं उसके ज़रिए अपने लोगों के दरमियान, फिर हमने अपने लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगाई हुई, हम फिर अपने कारकुनों का इजलास भी बुलाते हैं। अच्छा हुआ आप सही वक्त में आए कि मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ हमारे पास जो राब्ते हुए हैं और जो ताउन मांगा गया है, दराज़ किया गया है, उस हवाले से अपने लोगों के दरमियान भी, अपनी लीडरशिप के दरमियान भी, और फिर हमारा जो एक ग्रैंड असम्बली होती है उसके सामने हम रखेंगे। हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में भी जमहूरियत डिरेल नहीं है। हुकूमत आती हैं चली जाती हैं, इस हुकूमत को भी हमने इसी यकीन के साथ साथ दिया था कि पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। हालात हमें पता था कि मुश्किलात का शिकार हैं, और उस मुश्किलात से निकलने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए थी, मैं दुआ करता हूँ कि पीटीआई को मौका मिलेगा तो उससे ज़्यादा वाली एफ़र्ट करेगी। और ये बात मैंने आपसे बताई दी है कि इस पर बैठ के हमें डिस्कशन करना बाकी है। अच्छा, गवर्नर का ओहदा जो है इम्पार्शल गवर्नर का ओहदा होता है। इस वक्त आप जिस तरह पीटीआई के लिए वोट लेने आए, तो आप समझते हैं कि आप अपने ओहदे के साथ दुरुस्त देखिए, आपने लफ्ज़ चेंज कर दिया। इम्पार्शल का तो पीएम साहब ने बता ही दिया कि क्या होता है। न्यूट्रल की बात कर लें। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर था, हूँ और रहूँगा, और एमक्यूएम से, मेरे सियासत से हट के, मेरे इन सब लोगों से, वसीम अख्तर से, खालिद भाई से, ख्वाजा इजहार से, फैसल सब्ज़वारी, ये सब मेरे ज़ाती दोस्तों में शुमार होते हैं। हम एक ही शहर में पले बड़े हैं, एक ही शहर में हमने सियासत की है, एक ही शहर में हम साथ रहे हैं। जब मैं गवर्नर नहीं भी होऊंगा तो इंशाल्लाह यहाँ इसी दफ्तर में आके साथ में बिहारी कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। वो आज तो इन्होंने हमें चाय बिस्किट पे निपटाया ना, हमें आज हमारे पक्के एलाइज लगे, क्योंकि आज पहली बार हमने चाय बिस्किट पे हमें फारिग किया यहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो खालिद भाई ने पैमाना रखा है ना अपने फ़ैसला करने का, इससे मैं आज बहुत मुतमईन होके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर पैमाना ये रखते कि जी गिव एंड टेक क्या हो रहा है, कि क्या पीपल्स पार्टी इनको गवर्नरशिप देने को तैयार है, क्या वो इनको चीफ मिनिस्टरशिप देने को तैयार है, जो कि नहीं होगी। लेकिन इनका पैमाना जो है वो ये है कि हक़ और सच के साथ इन्होंने खड़ा होना है। तो अगर बात हक़ और सच की है और इसी पैमाने पे एमक्यूएम फैसला करेगी, तो मैं आज यहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब लेके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सामने सबको पता लग रहा है कि हक़ और सच किधर है। मैं आज क्योंकि एमक्यूएम के दफ्तर पे खड़ा हूँ, लिहाजा मैं ज़्यादा दूसरी तरफ की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने, पूरी कौम के सामने बिल्कुल एक सच्चाई के साथ एक शख्स इमरान खान खड़ा है, और एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि कौन खड़ा है। तो इसमें ज़्यादा फैसला करने में दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपसे सवाल है, आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि एमक्यूएम को साजिश के तहत दूर किया गया, बहुत स्कोप है, आए साथ काम करते हैं, क्या कहें? मेरा ख्याल है ये स्कोप तो था और स्कोप होना भी चाहिए। एक दूसरे को तस्लीम किए बगैर, एक दूसरे के हुकूक की ताज़ीम किए बगैर, इंसाफ के मुकम्मल फराहमी के बगैर तो ख़ानदान भी एक नहीं रहते। हुकूमतें, सियासी जमातें, उनका इत्तेहाद और इवन इंतज़ामी यूनिट भी एक नहीं रह पाते। अच्छा, गवर्नर साहब ये बताइए, लोअर दिल्ली का जो जलसा हुआ उसमें खान साहब का मुखातिब ऐसा लग रहा था कि बराह रास्त जनरल बाजवा हैं, और आज जो जलसा हुआ उसमें पौने 4 साल बाद उन्होंने बानी एमक्यूएम को खिलाफ भी जो है वो जुमले अदा किए। तो क्या इमरान खान साहब का आज एमक्यूएम के हवाले से तकरीबन पौने 4 साल बाद उनको कैसा बयान लगा? मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो।
एम के एम लंदन, एम के एम पाकिस्तान दो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल उन्होंने मुख्तलिफ कोई चीज़ें ऐसी हैं। बात नहीं की जिसमें मैं याद नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी। क्या जनरल बाजवा मुखातिब थे साहब से मेरा सवाल है कि क्या आपकी काफ लीग के साथ कोई राब्ता है? जैसा कि आपकी पहले मुलाकात हुई, आपने कहा कि हम मिलकर आइंदा का लाया अमल तय करेंगे। क्या काफ लीग की लीडरशिप आपके साथ ऑन बोर्ड है, और कब तक एमक्यूएम बाज़ाब्ता तौर पे फैसला कर लेगी कि वो अपोजिशन के साथ है या हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी? इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि हमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एमक्यूएम की क़यादत भी वही फैसला कर ले जो हमने किया है, ताकि एक साथ उसका ऐलान किया जा सके। नहीं, वो ऑन बोर्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ है, राब्ते में होना बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। राब्ते में है, और क्योंकि एलाइज भी रहे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात भी रहे हैं, उनको अपना फ़ैसला करना है, हमें अपना फ़ैसला करना है ना। और हमने अपने फ़ैसले का क्राइटेरिया बता दिया है और उनकी मौजूदगी में बता दिया है। और इसके साथ साथ हमारे फ़ैसले में क्राइटेरिया से ज़्यादा बाकी जमातों के हालात हमारे हालात से बड़े मुख्तलिफ हैं। तो हमारी जो लेजिटिमेट हमारा वजूद है और हमारी जो सियासी आज़ादी है वो अपोजिशन की जमातों से भी मुख्तलिफ है। तो इस खुसूसी सूरत हाल का भी सबको जायज़ा लेना चाहिए और उस पर उसी के तहत एमक्यूएम को देखना चाहिए। भाई साहब, कल एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई वक्त जा रहा है इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से दोबारा मुलाकात करने? पहली बार ऐसा लगा है कि आप परेशान हैं। वज़ीर आज़म साहब पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं, कुछ लेकर नहीं गए, एमक्यूएम कोई जवाब नहीं दे रही थी। आज भी आप जा रहे हैं तो कोई एमक्यूएम पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही। ये एमक्यूएम जो सबसे आसान थी आपको हैंडल करने में 3.5 साल में, जो फ़ोन के ऊपर भी हैंडल हो जाया करती थी, आपके आने के बावजूद भी नहीं हो रही थी। क्या सियासी सूरत हाल बदलने का टाइम आ गया? ये शराफत को हैंडल कह रहे हैं। और पता नहीं किसके फ़ोन की बात कर रहे हैं। हमारे तो हमेशा रवाबित बड़े क्लोज रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना कि एमक्यूएम से रवाबित जब से हुकूमत बनी है, जब से रवाबित हमारे क्लोज हैं और दिन ब दिन बेहतर से बेहतर ही हुए। हमारी बहस मुबाहिसे भी हुए हैं, हमारी चीज़ों के ऊपर जो प्रोग्रेस की स्पीड के ऊपर हमारी नाराज़गियाँ भी हुई हैं, दोस्तियाँ भी हुई हैं। और ये सारा बड़ा इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्राम हम इस सूबा सिंध के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और जो किया है हमने, उसमें एमक्यूएम शायद अगर हमारी रफ़ीक ना होती तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत भी आती है और स्लो भी होता। तो मैं इसका क्रेडिट एमक्यूएम को देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना उन प्रोग्रामों को जो किसी एक जमात के फ़ायदे के नहीं थे, जो किसी एक ज़बान बोलने वाले के फ़ायदे के नहीं थे, जो ख़ास तौर से अपने सूबा सिंध के लोगों की सहूलत, अपने सूबा सिंध के लोगों की उनकी आसानी के लिए जो प्रोग्राम थे, उनके ऊपर अमल पैरा होने में हमारे साथ खड़े रहे। और जो आप वो भी देख लें, जो इनकी हमारा जो एक एग्रीमेंट था एमक्यूएम के साथ, वो आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें क्या मांगा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, क्या उसके प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट कराए जा रहे थे। उसमें से कोई एक चीज़ आप अगर पिक करके बता देंगे इससे खालिसतन एमक्यूएम को फ़ायदा हो रहा था सियासी, तो वो मैं आपका कसूरवार हूँ। गवर्नर साहब, शायद एमक्यूएम आपको इसलिए जवाब नहीं दे रही, ये कश्मकश का शिकार है कि आपके अपने लोग ही आपके साथ नहीं है, इसलिए शायद इत्तेहादियों का वोट आपके साथ नहीं चला, शायद आपके अपने लोग कम है। और दूसरा ये कि क्या स्पीकर को इस्तेकाक हासिल है कि वो भाई आप क्या एमक्यूएम के स्पोक्स पर्सन हैं? ये बात तो उन्होंने मुझसे नहीं की कि हमें आपके ऊपर शक है। हमारे नंबर 100% पूरे हैं। मैंने आपसे इब्तिदाई कलमात में कहा कि इमरान खान साहब के पास अपने नंबर्स पूरे हैं। 172 का मैजिक फिगर ऑपोजिशन ने लेके आना है असेंबली के अंदर, हमने नहीं लाना। और ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो 172 तो क्या, अपने 160 भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अलीम खान से आप बातचीत करने के लिए गए थे, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? वो जो एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है पंजाब हुकूमत को तब्दील करने के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अलीम खान, मैंने कल भी ये कहा था कि अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये हमारी पार्टी का हिस्सा है और इंतहाई अहम हिस्सा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं उसे हम दूर कर लेंगे और वो खान साहब के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बड़े अरसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हुए और बेलौस काम करते हुए डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, क्या अब हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं है? दूसरा, आप लोगों की कल मुलाकात हो रही है पीपल्स पार्टी की क़यादत से दोबारा इस्लामाबाद में? जी। देखिए, मैं जो एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मैं जा रहा हूँ और जो भी मिलने की कोशिश करेगा, चाहेगा, हम करेंगे। हमारे बाकी लोग भी, कुछ को लाहौर जाना है, हमारी तंजीम उसके लिए, तो हम पहले भी मिलते रहे
لیکن اب ہم سے ملاقات کی خواہش بڑھی ہے تو ہماری ملاقات زیادہ ہو رہی ہے. اچھا خالد بھائی، آپ کے جو فوج اور وزیر ہیں حکومت وہ چند دنوں میں استعفیٰ دیں گے یا کنٹینیو کریں گے؟ ابھی لے لیں. سر جنرل باجوہ کا جو نام لے رہے ہیں وزیر دیکھیے، آپ نے نام لے کے سوال کیا کہ کیا جنرل باجوہ سے عمران خان صاحب کی کوئی دوری ہو گئی ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے دن جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جیسے افواج پاکستان کی حکومت پاکستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی اور جیسے ہونی چاہیے، اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ آج بھی موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے چیز چل رہی ہے کہ جی دونوں میں کوئی اختلاف یا دوریاں ہو گئی ہیں، اور اس کا ایڈوانٹیج کوئی اگر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں. عمران خان صاحب، افواج پاکستان، پاکستان کے ادارے، جنرل باجوہ صاحب اور دوسرے لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، وہ سب ایک پیج پر موجود ہیں آج بھی. یہ سران سیاسی فیصلہ ہے اور اس کو سیاست دانوں نے ہی حل کرنا ہے. اگر یہ اس کا اس سے آپ جوائن کریں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ ایک پیج پر ہیں کہ نہیں ہے. وہ ایک پیج پر ہیں. یہ سیاسی ایک موو ہے. اس کا فیصلہ سیاسی لوگوں نے کرنا ہے جو خالصتاً سیاست پہ، اپنے حلقوں کی سیاست پہ، اپنے شہروں کی سیاست پہ، اپنے صوبے کی سیاست پہ منحصر ہے.